students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to MCQ discussion series, and we will be revising the complete concept of the chapter along with MCQs. Alright, topic for this lecture is states of matter, and from this chapter we will be taking up gaseous state in this video. And let's start the questions. Before starting, make sure you subscribe to the channel so that you can get notifications for the upcoming videos. It will help you to revise the topic thoroughly, right? So in the chapter of gaseous state, we have to learn about various gas laws like Boyle's law, Charles law, Amundsen's law, जिसको कि pressure temperature law भी कहते हैं, then ideal gas equation. Apart from that, two more laws which are the Dalton's law of partial pressure and Graham's law of diffusion we have to take up. And you have to do the numerical problems related to these laws, and you have to take care of units also, be careful for the units. And after that, in the chapter we will be having the kinetic molecular theory of the gases. If some postulates are there for this theory and some results are there, and we have to see whether our gases are following those results or not. And we have to check that attraction between the molecules should be present or not, under what condition molecules are attracting each other, under what conditions they are repelling each other. Ideal gas का तो definition है the gas which has no intermolecular interactions. तो क्या practically gases में molecules interact नहीं करते, वो सब देखते हुए हमें check करना है कि practically gases ideal behavior को follow करती हैं या नहीं. Actually क्या होता है, volume occupied by molecules will not be negligible practically, and the interaction between the molecules will also not be zero. Therefore, exact ideal relation will not be obtained through the experiments. Then the scientist called as van der Waal has taken up the issue, and he has applied some corrections on pressure, applied some correction on volume, and he has modified the ideal gas equation to the real gas equation. So all these concepts we have to revise through these slides. Let's start our session with the first slide now. First of all, we will be taking up laws. So number one is Boyle's law. The law states that volume of given mass of a gas at constant temperature is inversely proportional to its pressure. तो लॉ ने हमें क्या बताया कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, बट कंडीशन होता है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट. एज अ रिजल्ट आप लिख सकते हो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. बार बार हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, PV इज कांस्टेंट, P1V1 इज इक्वल टू P2V2. अब हमने प्रेशर को डेंसिटी के साथ भी रिलेट करना है, वो ये रिलेशन दिया हुआ है P1/D1 इज इक्वल टू P2/D2. देखिए ये कैसे आया. वॉल्यूम हम जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, बट वॉल्यूम इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो है उसको डेंसिटी कहते हैं. एज अ रिजल्ट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. Hence, we can say P/D is constant. Pressure is directly proportional to density. ये कॉम्प्लिकेशन, ये इम्प्लीकेशन आपको दिख रही है बॉयल्स लॉ के अंदर, और इसका प्रैक्टिकल यूज ये है, माउंटेन के ऊपर जब कोई जाता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है. यू नो दैट माउंट एवरेस्ट के ऊपर प्रेशर कम है, जितना हम हाइट पे जाते हैं प्रेशर डिक्रीज होता है. माउंट एवरेस्ट के ऊपर सिर्फ 0.6 एटमॉस्फेयर प्रेशर है. लो प्रेशर मींस लो डेंसिटी ऑफ एयर. लो डेंसिटी ऑफ एयर का मतलब है लेस ऑक्सीजन कंटेंट. ऑक्सीजन कंटेंट अगर कम हो जाएगा, देयरफॉर अल्टीट्यूड सिकनेस होती है. जब आप किसी माउंटेन पे जाते हो तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है. सो ये सारा बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है. बॉयल्स लॉ को आप प्रेशर डेंसिटी की टर्म्स में अगर लिखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाई प्रेशर हो तो डेंसिटी ऑफ एयर इज ऑल्सो हाई, बट डेंसिटी कम हो जाएगी अगर प्रेशर कम है, और माउंटेन्स के ऊपर तो प्रेशर कम होता है. सो वी कैन मेंशन हियर डेंसिटी ऑफ एयर इज लो, राइट. तो P/D इज कांस्टेंट, तो आप लिख सकते हो P1/D1 इज इक्वल टू P2/D2. दिस वाज ऑलरेडी गिवन हियर.
नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आइसोथर्म्स ड्रॉ किए गए हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो इनको हम आइसोथर्म बोलते हैं. यू कैन सी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड वेरियस टेम्परेचर्स आर गिवन टू यू लाइक T1, T2, T3. वी कैन ड्रॉ इट हेयर. We have to show the relation between pressure versus temperature, और इनवर्स का ग्राफ आपको दिख रहा है. This is the situation. 3 different temperatures are taken. यहाँ ग्राफ में T3, T2 एंड T1 ये टेम्परेचर्स लिए गए. प्रेशर को प्लॉट करते हैं वॉल्यूम के साथ. अब देखना यह है कि T3 बिगेस्ट है या T3 स्मॉलेस्ट है. यहाँ पे दिया है T3 इज बिगेस्ट, तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा T3 विल बी हाईएस्ट और लोएस्ट. तो देखिए उसके लिए हम पहले ना एक प्रेशर कांस्टेंट ले लेते हैं. कंसीडर अ कांस्टेंट प्रेशर. उस कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर आप देखते हो तो ये वॉल्यूम के वैल्यूज हैं. T1 कर्व का वॉल्यूम है ये V1, T2 कर्व का वॉल्यूम V2 एंड T3 कर्व का वॉल्यूम है V3. राइट, तो अलग अलग हमने वॉल्यूम देखे और ग्राफ से दिख रहा है V3 इज बिगेस्ट ऑफ ऑल, V3 इज बिगर देन V2 देन V1. इट मीन्स दैट T3 इज बिगर. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है. एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. राइट, इन दिस मैनर आपको ये मेंशन करना था कि T3 इज हाईएस्ट. इसी तरह दूसरे ग्राफ में भी चेक कर सकते हैं. इन द नेक्स्ट ग्राफ प्रेशर वर्सेस 1/V का ग्राफ है ये. यहाँ पे लीनियर रिलेशन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है. इसमें भी आप चेक करने के लिए क्या कीजिए कि हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं. प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो T3 कर्व है जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1/V3 आ गया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग T1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1/V1 आ गया. अकॉर्डिंगली आप शो कर सकते हो. यू कैन प्रूव दैट T3 इज हाईएस्ट एंड T1 इज लोएस्ट. राइट, तो PV इज इक्वल टू K हमारा एक्सप्रेशन है फ्रॉम बॉयल्स लॉ. PV इज कांस्टेंट. इफ आई टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? यू विल हैव log of P प्लस log of V इज इक्वल टू log A प्लस log B. क्या होता है? log A प्लस log B के लिए हमने ये एक्चुअली एक्सप्रेशन मैंने ये यूज किया है, log A इंटू B इज इक्वल टू log A प्लस log B. तो हमारे पास क्या था? PV का log, तो log P प्लस log V बन गया इक्वल टू log ऑफ K. अब हम y एक्सिस पे log P रखेंगे, ये उधर जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो ये आपका एक्सप्रेशन. थिंग्स आर क्लियर? कैन आई ड्रॉ ए ग्राफ? इट इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. हम ग्राफ में y एक्सिस पे रखने वाले हैं log P एंड x एक्सिस पे रहेगा log ऑफ V. You will have a straight line with a negative slope and slope of the line is equal to -1. इस तरीके से ये लाइन आ जाएगी, slope is -1. राइट, तो अलग अलग सिचुएशंस में आपको बॉयल्स लॉ के ऊपर ये एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड है चार्ल्स लॉ. Charles law states that the volume of given mass of a gas at constant pressure is directly proportional to टेम्परेचर. इस लॉ ने हमें बताया कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. कंडीशन क्या होती है? प्रेशर वेरी नहीं करना चाहिए एट कांस्टेंट pressure. In this manner you can write V upon T is constant. I mean to say V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. अब हम वॉल्यूम और डेंसिटी का अगर रिलेशन देखें तो क्या ये क्लियर है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. It means that temperature is inversely proportional to density. In other words, D into T is constant. D into T constant मतलब D1 T1 is equal to D2 T2. ये चार्ल्स लॉ को लिखने का एक और तरीका डेंसिटी की टर्म्स में. Things are clear? तो जिस तरीके से आप देखते हो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम जान सकते हैं. हॉट एयर बैलून्स राइज अप एंड अप. हॉट एयर बैलून हमेशा ऊपर जाता है. हॉट जो गर्म हवा है वो कोल्ड एयर को डिस्प्लेस कर देती है. एंड हॉट एयर बैलून्स आर यूज्ड फॉर द वेदर फॉरकास्ट.
फॉर वेदर फोरकास्ट हॉट एयर बैलून्स आर यूज्ड बिकॉज हॉट एयर में हाई टेम्परेचर मीन्स मोर वॉल्यूम. वी कैन मेंशन हेयर more temperature means more volume. तो वॉल्यूम बढ़ेगा, gases expand on heating, therefore they rise up and up. gases expand on heating. ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है चार्ल्स लॉ के साथ. तो चार्ल्स लॉ के ग्राफ देखिए, ग्राफ है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का. वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर आप देखिए स्ट्रेट लाइन आ रही है, बट प्रेशर्स अलग अलग लिए गए हैं, P1, P2, P3. P1 बिगेस्ट है या P3 वो कमेंट करने के लिए हम पहले एक वॉल्यूम कांस्टेंट ले लेंगे. कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर अब आप देखो जहां P1 है वो कर्व आ गया T1 का, वो पॉइंट T1, एंड दिस इज फॉर T3. ग्राफ से आपको दिख रहा है कि T1 सबसे बड़ा है. अगर T1 बड़ा है, वी कैन मेंशन हेयर from the graph it is clear that T1 is bigger than T2 than T3, hence P1 is bigger than P2 than P3. क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो फिर प्रेशर बढ़ता है, राइट. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. योर आंसर इज T1 is highest. T1 हाईएस्ट का मतलब P1 will be highest, right. सिमिलरली दूसरा ग्राफ देखिए, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर जो कर्व है वो -273 डिग्री पे जाके मिलता है. -273 डिग्री इज कॉल्ड एज 0 केल्विन. जितना वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम बढ़ता है, बट अगर हम टेम्परेचर कम कर दें, 0 डिग्री से नीचे आ जाएं, कूल करना शुरू कर दें, तो वॉल्यूम कम होता है. बट वॉल्यूम 0 कब होगा जाके? वॉल्यूम 0 होता है एट -273 डिग्री सेल्सियस, विच इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो, और इट इज 0 केल्विन. एंड प्रैक्टिकली दिस टेम्परेचर इज नेवर अचीव्ड. इन दिस वे आप इसका भी लॉग का एक्सप्रेशन लिख सकते हो. V/T इज कॉन्स्टेंट वी हैव टेकन अप. तो अगर हम इसको log ले लें तो log V माइनस log T इज इक्वल टू log ऑफ K. प्लॉट करेंगे तो log V को हम y एक्सिस पे रखेंगे एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब वो x एक्सिस पे जाएगा log T. y इज इक्वल टू mx प्लस c. सो स्लोप ऑफ द लाइन विल बी इक्वल टू +1. इस तरीके से ग्राफ मिलेगा आपको जिसमें y एक्सिस पे है log ऑफ v, यहाँ पे है log ऑफ k, एंड देयर इज अ स्ट्रेट लाइन विद सम इंटरसेप्ट एंड स्लोप इज इक्वल टू -1. दिस इज इंटरसेप्ट log k, राइट. तो चार्ल्स लॉ, उसका इक्वेशन, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने देखा. आगे आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे. गेल-लुसैक्स लॉ, और इसको अमेंटन्स लॉ भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशर टेम्परेचर लॉ. तो देखिए, pressure of a given mass of a gas at constant volume is directly proportional to the absolute temperature. ये लॉ कहता है कि अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, समझ लो कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है 2 लीटर 3 लीटर, उस कंटेनर में आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर मॉलिक्यूल्स जाके वॉल पे स्ट्राइक करेंगे विद अ ग्रेटर इम्पैक्ट. एज अ रिजल्ट प्रेशर विल इंक्रीज. सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. वी कैन से P/T इज कांस्टेंट, राइट. तो आप P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 ये एक्सप्रेशन लिख सकते हो. अब क्वेश्चन दिया है, अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग कुकिंग गैस कैन विदस्टैंड अ प्रेशर ऑफ 14.9 बार. द प्रेशर गॉज ऑफ द सिलेंडर इंडिकेट्स 12 बार एट 27 डिग्री सेल्सियस. ड्यू टू सडन फायर इन द बिल्डिंग, टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग, एंड एट व्हाट टेम्परेचर विल द सिलेंडर एक्सप्लोड. किस टेम्परेचर पे जाके एक्सप्लोजन होगा ये हमें चेक करना है. जिस रूम में सिलेंडर रखा गया था उसमें ड्यू टू सम इंसिडेंट्स फायर क्रिएट हो चुकी है और टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है, तो क्या सिलेंडर बचेगा या एक्सप्लोड कर जाएगा? तो उसके लिए आप लिखेंगे P1V1 इज इक्वल P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, क्योंकि टेम्परेचर के साथ रिलेशन बताना है. तो अब हम क्या करते हैं, प्रेशर दिया है 14.9, किस टेम्परेचर पे ये प्रेशर क्रिएट होगा वो देखना है. जब टेम्परेचर है 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन, तब प्रेशर था 12 बार,
राइट किस टेम्परेचर पे 14.9 अचीव होगा, हम ये कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन ये 372.5 केल्विन आपको मिलेगा। दैट मीन्स 99.5 डिग्री टेम्परेचर अगर रूम में क्रिएट हुआ तो सिलेंडर विल एक्सप्लोड, अदरवाइज सिलेंडर विल बी सेफ। सो एट व्हाट टेम्परेचर द सिलेंडर विल एक्सप्लोड, आपको ये पूछा गया था। हमारा आंसर है 99.5 डिग्री के ऊपर एक्सप्लोजन हो जाएगा। राइट तो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है ये रिजल्ट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव द गैस इक्वेशन। This is called as the ideal gas equation, which is PV is equal to nRT। किस तरह से ये इक्वेशन अचीव हो रही है देखिए। पहले हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को कंबाइन कर देंगे। बॉयल्स लॉ इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और यू कैन से वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये चार्ल्स लॉ ने बता दिया। और एवोगैड्रो लॉ तो यही होता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स। तो तीनों को कंबाइन कर देंगे। वॉल्यूम अल्टीमेटली आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी। सो PV is equal to nRT. This is called as the ideal gas equation. Ideal gas equation। और आप ये देखते हो कि जो n है वो नंबर ऑफ मोल्स है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज गिवन वेट अपॉन मोलर मास। एंड वॉल्यूम को राइट पे ले आने से वॉल्यूम का जो रेशो है वेट और वॉल्यूम का वो डेंसिटी होता है। दिस इज द रिजल्ट। प्रेशर इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू RT। तो वेट अपॉन वॉल्यूम जो है दैट इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ द गैस। तो PM इज इक्वल टू DRT। ये आपके पास इक्वेशन आ रही है। PM is equal to DRT, where D is the density of the gas, hence it becomes D is equal to PM upon RT। कहने का मतलब गैस का डेंसिटी प्रेशर से बढ़ता है, बट अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो डेंसिटी ऑफ द गैस विल डिक्रीज। दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि रिलेटेड हैं आइडियल गैस इक्वेशन के साथ। प्रेशर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, एम्प्टी स्पेस कम होगी तो गैस की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, बट टेम्परेचर के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो इन दिस वे ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट था, बट इसमें R का इंपॉर्टेंस है। यूनिट्स ऑफ R आप चेक करिए, अलग अलग सिचुएशन में आपको अलग अलग यूनिट्स लेने पड़ते हैं। जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है PV इज इक्वल टू nRT, कैन वी राइट R इज द रेशियो ऑफ PV अपॉन NT। राइट तो अब आप देखिए, प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में है 1 एटमॉस्फेयर एंड 1 mole of the gas is given to you and you are having gas at 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। ऐसी सिचुएशन में जिसको कि हम STP कंडीशन कहते हैं, गैस का वॉल्यूम आ जाएगा 22.4 लीटर फॉर 1 मोल। एज अ रिजल्ट आफ्टर कैलकुलेशन R का वैल्यू बनेगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक से वैल्यू पता होनी चाहिए और यूनिट्स पता होने चाहिए, अदरवाइज यू विल बी हैविंग सम प्रॉब्लम इन द क्वेश्चंस। अगर हम ये 1 बार लेते हैं, प्रेशर को 1 बार लेते हैं, तो फिर वॉल्यूम आता है 22.7 लीटर्स एंड टेम्परेचर तो हमने 273 केल्विन ही रखा है फॉर 1 मोल। वॉल्यूम बन गया 22.7 लीटर। एज अ रिजल्ट R का वैल्यू स्लाइटली वेरी करेगा 0.0831। इट इज लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तो यूनिट्स ऑफ R एंड द वैल्यू ऑफ R इज इंपॉर्टेंट। अब SI यूनिट्स के अंदर R का क्या वैल्यू है, 1 एटमॉस्फेयर को फिर हम 101325 पास्कल लिखेंगे, क्योंकि फिर SI यूनिट में रिजल्ट देना है तो प्रेशर SI में लेना है। R is equal to 101325 पास्कल एंड वॉल्यूम फिर लीटर में नहीं, वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब में लेना है। 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। कीप इन माइंड 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर्स एंड 1 मोल टेम्परेचर इज 273 ओनली। आवर रिजल्ट विल कम आउट टू बी 8.314। यूनिट बनेंगे पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। दिस इज नथिंग बट जूल। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। पास्कल मीटर क्यूब इज जूल, राइट।
and we can mention here 1 meter cube is 10 raised to power 3 liters. In this manner, we have various units of R and the corresponding values of R, right? SI यूनिट हमने सबसे लास्ट में लिखा है जो जूल पर केल्विन पर मोल है. Next you have in the next slide Dalton's law of partial pressures. This law states that, statement देखिए, total pressure of a mixture of non-reacting gases enclosed in a chamber is sum of their partial pressures. टोटल प्रेशर जो है वो इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम होता है. जैसे कि P1 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, P2 सेकेंड गैस एंड सो ऑन. टोटल सबके पार्शियल प्रेशर्स को अगर ऐड करो तो आपको टोटल प्रेशर मिलेगा. एंड इट कैन बी रिटन एज N1 प्लस N2 प्लस N3 RT अपॉन V बाई PV इज इक्वल टू NRT. हमने सेम एक्सप्रेशन यूज कर लिया. और आगे देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट. नाउ if a mixture of non-reacting gases is given, partial pressure of a gas is directly proportional to its mole fraction. ये statement आ रहा है Dalton's law से. Partial pressure of any gas A is directly proportional to the mole fraction of that gas. किस तरीके से आप रेशो लेके दिखाया जा रहा है यहाँ पे. P1 अपॉन P टोटल कर लेते हैं. समझ लो फर्स्ट गैस है, उसका प्रेशर आप डिवाइड करोगे विद द टोटल प्रेशर एंड कॉरस्पॉन्डिंग मोल्स. फर्स्ट गैस का मोल है N1 बट टोटल मोल्स हैं N टोटल. एज अ रिजल्ट RT अपॉन V तो कैंसिल हो जाएगा एंड दिस रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एज कंपेयर टू टोटल मोल्स को क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन. सो आप इस तरीके से एक्सप्रेशन लिख सकते हो. पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर. इसी तरीके से हम करते हैं कि अगर आपको ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो वेट गैस के पार्शियल प्रेशर में से हम वाटर का पार्शियल प्रेशर माइनस कर देंगे. वाटर का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज कॉल्ड एज एक्वस टेंशन. तो आप यहां से एक्वस टेंशन माइनस करिए, यू विल गेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द dry gas. Vapor pressure of water is different at different temperatures. वो क्वेश्चंस में दिया होता है. जैसे कि 15 डिग्री पे कम वेपर्स बन रहे हैं, 50 डिग्री पे ज्यादा बन रहे हैं, 80 डिग्री पे और ज्यादा वेपर बन रहे हैं. तो जितना ज्यादा टेम्परेचर है उतना एक्वस टेंशन का वैल्यू हाई होता है. एक्वस टेंशन होता है प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स ओनली, राइट. और एक दो बातें इससे रिलेटेड ये भी हैं कि कभी हमें ड्राई एयर और वेट एयर का कंपैरिजन करना हो तो आपने याद रखना है ड्राई एयर हैज मोर मास. ड्राई एयर इज हेवियर देन द वेट एयर. ड्राई एयर इज हेवियर देन द वेट एयर, राइट. क्योंकि वेट एयर को वाटर कंटेंट मिलता है, वाटर का मोलर मास कम है. ड्राई एयर में तो सिर्फ N2 एंड O2 है मेजर कंपोनेंट्स. एज अ रिजल्ट आपको ये याद रखना है कि ड्राई एयर विल बी हेवियर. ड्राई एयर का मोलर मास हम रफली 28.8 और 29 लेते हैं, राइट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ. ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बताता है? अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर the rate of diffusion of gases are inversely proportional to their molecular mass or it is inversely proportional to their density. कहने का मतलब गैस किस रेट पे ट्रेवल करती है वो inversely proportional है to the density of the gas. The heavier gas will obviously be moving at a slow rate. स्लो रेट पे हेवी गैस मूव करेगी क्योंकि उसका मोलर मास ज्यादा है. तो डेंसिटी से मोलर मास से इनवर्स का रिलेशन होता है बट अंडर रूट के साथ है. रूट ऑफ डेंसिटी रूट ऑफ मोलर मास. इन दिस वे प्रेशर भी कभी कभी दिया होता है कि जैसे कि दो गैसेस हैं, जरूरी नहीं है हर बार हम उनको सेम प्रेशर पे रखेंगे. अगर तो प्रेशर सेम है देन R1 अपॉन R2 इज अंडर रूट M2 अपॉन M1 और यू कैन से अंडर रूट D2 अपॉन D1. बट अगर प्रेशर्स भी डिफरेंट हैं देन इट इज P1 अपॉन P2. रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. जिस गैस के ऊपर ज्यादा प्रेशर लग रहा है उसका रेट ऑफ फ्लो ज्यादा होगा. तो ये एक्सप्रेशन P1 अपॉन P2 विच इज अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1 एंड अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ मोल्स के साथ भी आप इसको
रिलेट कर सकते हो बाय दिस रिलेशन, राइट. सो आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दीज लॉज we have to come to few questions. Some of them will be the questions from previous year. So let's start with the first question now. The first question is, the graphs below show the behavior of various gases. Which of these gases exhibit the behavior that deviates most significantly from the expected? आपको ये ढूंढना है कि कौन से ग्राफ में आइडियल गैस बिहेवियर फॉलो नहीं हो रहा है, डेविएशन किस में आ रहा है. फर्स्ट ग्राफ को देखते हैं, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर. फर्स्ट ग्राफ इज इंडिकेटिंग चार्ल्स लॉ. तो चार्ल्स लॉ से यही सीखा आपने कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो लीनियर रिलेशन आ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है. इफ आई कम टू द सेकंड graph is in accordance with PV is equal to nRT. PV is equal to nRT में जो P into V है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, दैट इज कांस्टेंट. और आपको ग्राफ में दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो स्ट्रेट लाइन विच इज अ कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस यू आर गेटिंग. ग्राफ नंबर सी, इट इज अगेन आई थिंक इन अकॉर्डेंस विद PV इज इक्वल टू nRT. चेक कर लेते हैं, ये प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ दिया है. प्रेशर टेम्परेचर इज द अमेंटन्स लॉ, मोर टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल इंडिकेट मोर प्रेशर. क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है तो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, जिससे वॉल पे जोर से जाके कोलाइड करेंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ता है, एज ए रिजल्ट प्रेशर बढ़ जाता है. डी ग्राफ क्या है, P अपॉन T वर्सेस वॉल्यूम. तो देखते हैं, PV इज इक्वल टू nRT दिया है, तो हमें अब चाहिए प्रेशर के साथ टेम्परेचर का रेशो. दिस इज गिवन ऑन द वाई एक्सिस, P अपॉन T. कैन इट बी रिटन एज nR अपॉन V? इट मीन्स दैट P अपॉन V का जो रिलेशन है, P अपॉन T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. Can I see from the equation the ratio of pressure upon temperature is inversely proportional to volume. Inversely proportional to volume है तो inverse का ग्राफ आना चाहिए. यहाँ तो straight line ग्राफ दिया है D ऑप्शन में, ये चेक करो. The graph for D option is asking you for P upon T versus volume. तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे होना चाहिए. इनवर्स का ग्राफ तो ये होता है फॉर गैस D. इट इज रिटन हेयर गैस डी, तो हम इसको मेंशन कर देंगे गैस डी. एंड द अदर पैरामीटर्स आर केप्ट कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट. मतलब मैक्सिमम डेविएशन हमारे पास डी ऑप्शन में आ रही है. कहने का मतलब डी ग्राफ जो है दैट इज रॉन्ग. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. एन ओपन वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड until 2/5 of the air in it has escaped from the vessel. Assuming that the volume of the vessel remains constant, the temperature at which the vessel has been heated is. It is a question from 2019 JEE Mains. आपको ये बताना है कि कितने टेम्परेचर पे वेसल को हीट किया जाए ताकि उसका 2/5 एयर हैज बीन एस्केप्ड. मतलब कि इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री विच इज 300 केल्विन. अब एयर बाहर चली जाती है तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिक्रीजेस और यू कैन से reduced by 2/5 of the original volume. तो what is the volume of air left inside? Volume of air left behind मतलब 3/5 वॉल्यूम रह गया अंदर और 2/5 एस्केप आउट हो गया. तो अब हम टेम्परेचर पता करेंगे. T2 आपको कैलकुलेट करना है. तो लेट्स से वॉल्यूम ऑफ एयर इनिशियली in the vessel, it is at temperature T1 is equal to say N. और फिर वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर हीटिंग, आपने गैस को हीट किया, हीट करके आप उसको T2 पे ले आए, आफ्टर हीटिंग टू T2, तो ये बन गया 3/5 ऑफ N. ठीक है. अब हम N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 कर देते हैं. बाकी पैरामीटर्स कांस्टेंट है. वॉल्यूम आपने जितना डिक्रीज हुआ वो दिखा दिया. प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू है N, टेम्परेचर है 300 एंड दिस इज
3/5 of n and this is the temperature T2. N and n will be cancelled. You will get your answer as 500 Kelvin. 500 Kelvin पे हमने गैस को हीट किया है. उस सिचुएशन में 2/5 ऑफ द गैस विल एस्केप आउट एंड 3/5 विल बी लेफ्ट बिहाइंड. कीप इन माइंड हम ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. दिस इज द एवोगैड्रोस लॉ. वॉल्यूम मैंने नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेट कर दिया. राइट, सिंपल क्वेश्चन बट इट वॉज रिलेटेड टू द आइडियल गैस इक्वेशन. Another one, we have question number 3, 0.5 mole of a gas A and x mole of a gas B. They exert a pressure of 200 Pascal in a container of volume 10 meter cube at 1000 Kelvin. R का वैल्यू आपको given the R value is gas constant in joule per Kelvin per mole. R को R ही रखना है, वैल्यू पुट नहीं करना. सारी ऑप्शंस में R है, X कैलकुलेट करना है. तो सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ PV इज इक्वल टू nRT. 2019 जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया है. हमारे पास दो गैसेस का मिक्सचर है, तो PV इज इक्वल टू nRT में दोनों गैसेस में Na मोल्स A गैस के, Nb मोल B गैस के, ये आपको लिखने पड़ेंगे. अब वैल्यूज हमारे पास 200 फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम आपको दे रखा है 10 मीटर क्यूब. SI यूनिट में दिया है सब, ये पास्कल में और ये मीटर क्यूब में. इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस है 0.5, दूसरी गैस है x मोल, इंटू R इंटू T है 1000 केल्विन. 1000 केल्विन. तो क्या हम इसको R को एक्सप्रेस कर सकते हैं? वी कैन राइट दिस इज 2000, इट इज इक्वल टू 1/2 प्लस x इंटू R. तो ये आपका एक्सप्रेशन बन रहा है. R आपको चाहिए, R इज इक्वल टू, इधर 1000 भी था. ये जो फैक्टर कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करने के बाद आप पहुंच जाओगे इस एक्सप्रेशन के ऊपर. R विल बी इक्वल टू 4 माइनस R अपॉन 2R. LCM लेना पड़ेगा एंड x कैलकुलेट करना है, ना कि R. सॉरी, x वॉज टू बी कैलकुलेटेड. तो x को रखिए लेफ्ट पे. x का ये एक्सप्रेशन आएगा 4 minus R upon 2R means your answer will become option B. R की टर्म्स में हमें नंबर ऑफ मोल्स को एक्सप्रेस करना था. सिंपल एक्सप्रेशन था बट गैसेस दो हैं. बी केयरफुल, दोनों के अलग अलग मोल्स हैं. उसके अकॉर्डिंग आपने यहां पे कैलकुलेशन के बाद x का वैल्यू निकालना है. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. अनदर वन, दिस इज अगेन फ्रॉम 2019 जेईई मेंस. Two closed bulbs of equal volume V containing an ideal gas initially at pressure Pi and temperature T1 are connected through a narrow tube of negligible volume as shown in the figure below. The temperature of one of the bulbs is raised to T2. The final pressure is. आपको अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं. आपको ये सिचुएशन दिखाया जा रहा है कि पहले जो प्रेशर है वो Pi है, उसके बाद ये फाइनल प्रेशर Pf बन गया. दोनों बल्ब्स कनेक्टेड हैं. एक को हमने हीट कर दिया है, T1 की जगह राइट वाले को हीट करके T2 बना दिया. तो आपको फाइनल प्रेशर लिखना है, जिसमें कि इनिशियल प्रेशर की टर्म्स के अंदर फाइनल प्रेशर लिखना है. तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम PV इज इक्वल टू nRT कैन आई राइट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैस इन द कंटेनर. नंबर ऑफ मोल्स हो गया इक्वल टू PV अपॉन RT, बट पहले इनिशियल प्रेशर लेना है. इनिशियल टेम्परेचर T1 था. अब दो बल्ब्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसी तरह, जितने मोल्स फर्स्ट में हैं उसी तरह सेकंड गैस के मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डबल हो जाएंगे. इट इज 2 इंटू PIV अपॉन RT1. राइट. आगे आप क्या करते हो, अब आप हीट करना शुरू करते हो. आफ्टर मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स इन द लेफ्ट चैम्बर और इन द लेफ्ट कंटेनर, इट इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर. अब प्रेशर चेंज हो रहा है. फाइनल प्रेशर PF कर दिया इंटू V अपॉन RT1. अभी हमने दूसरे बल्ब का तो टेम्परेचर भी चेंज कर दिया है. नंबर ऑफ मोल्स इन द राइट बल्ब के लिए टेम्परेचर कर दिया T2
तो उसके लिए आप एक्सप्रेशन लिखोगे फाइनल प्रेशर अगेन इनटू वॉल्यूम अपॉन RT2, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम इक्वेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस विल नॉट चेंज। तो हम इन दोनों को इक्वेट अगर कर दें, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अब ये लेफ्ट पे है 2pi, 1 second, on the left hand side we have 2piv upon RTI and right side पे PFV upon RT1 plus PFV upon RT2। जो कॉमन फैक्टर है उसको हम कैंसिल करेंगे, 2piv अपॉन R, और यहाँ है फाइनल प्रेशर कॉमन है, पहले कॉमन को बाहर ले लेते हैं, V अपॉन R, 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2। थिंग्स आर क्लियर। तो चेक करते हैं क्या क्या कैंसिल होता है, वॉल्यूम एंड R, प्रेशर चेंज हो रहा है, आपको फाइनल प्रेशर लिखना है, फाइनल प्रेशर ऑब्टेन्ड विल बी इक्वल टू, फाइनल को लाओ लेफ्ट पे, पहले हम एलसीएम ले लें, इट विल बी बेटर, 2pi इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर एंड ये बना T1 T2 और न्यूमरेटर में T1 प्लस T2। कैन वी राइट 2pi अपॉन T1 प्लस T2 और न्यूमरेटर में T1 T2, दिस इज इक्वल टू द फाइनल प्रेशर। लेट्स चेक द ऑप्शंस नाउ, 2pi T2 एंड 1 T1 शुड बी कैंसल्ड। अभी हमने एक T1 यहाँ पे छोड़ दिया बाय मिस्टेक, यहाँ से हमने T इनिशियल T1 या Ti जो है वो हमने छोड़ दिया था, तो वो भी कैंसिल होगा। तो द एक्सप्रेशन विल बी, Ti भी जब आप कैंसिल करोगे तो फाइनल आपका एक्सप्रेशन बनेगा, इट विल बी इक्वल टू 2pi इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2, राइट। अब आप चेक करिए ऑप्शंस को, ये आपका आंसर है 2pi T2 अपॉन T1 प्लस T2 मीन्स बी ऑप्शन। सिंपल एक्सप्रेशन था, नंबर ऑफ मोल्स आपको इक्वेट करने थे, दोनों को कनेक्ट किया गया था एक नैरो ट्यूब के थ्रू, डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है, और टेम्परेचर भी रेज कर दिया, टेम्परेचर रेज करने के बाद राइट का टेम्परेचर T2 बन गया, लेफ्ट का तो T1 ही था, अकॉर्डिंगली आपने नंबर ऑफ मोल्स को इक्वल किया है। ये मेन कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन द सेम, लेफ्ट चैम्बर में राइट चैम्बर में जो भी मोल्स हैं उनको ऐड करना है, बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग नंबर ऑफ मोल्स विल नॉट चेंज। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं। नेक्स्ट आता है 4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज from a container in 8 minutes. What will be the mass of helium gas diffusing from the same container in the same time interval? This question is related with Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion में हमने क्या पढ़ा है, rate of diffusion is inversely proportional to molecular mass. Rate of diffusion मतलब R1 upon R2। तो R1 upon R2 को हम वॉल्यूम की टर्म्स में लिखेंगे, वॉल्यूम अपॉन टाइम, टाइम सेम रहेगा, सेम इंटरवल दिया है क्वेश्चन में, तो T1 एंड T2 हम नहीं लिख रहे हैं, V1 अपॉन V2 लिख रहे हैं। तो क्या हम वॉल्यूम का जो रेशो है वो नंबर ऑफ मोल्स का रेशो लिख सकते हैं, इट विल बी N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। बट हमारे को ग्राम्स में डेटा दिया है, ग्राम्स में ही हमने आंसर करना है, मोल्स को वेट में कन्वर्ट करो। It can be written as given weight upon molecular weight for first component, for second component आपने ये एक्सप्रेशन लिख दिया, तो ये बन गया W1 upon W2 is equal to under root of M1 upon M2, राइट। अब चेक करते हैं कौन कौन सी गैसेस थी, एक थी सल्फर डाइऑक्साइड और एक थी हीलियम। तो 1 का सिंबल हम हीलियम ले लेते हैं, 2 का सिंबल हम लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। दिस विल बी इक्वल टू 4 एंड 64। सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास 64, हीलियम का 4। तो आप कैलकुलेट करिए वेट ऑफ हीलियम, वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, क्वेश्चन ने चेक करो 4 ग्राम दिया था, 4 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, एक का वेट आपको गिवन था, एक का वेट आपको कैलकुलेट करना था, रूट सॉल्व करने के बाद आ गया 1/4, तो हीलियम 1 ग्राम डिफ्यूज करेगी, 1 gram of helium will diffuse. Mass of helium diffusing from the same container over the same time in 8 minutes
इट इज 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब क्या हुआ? आपका आंसर है ऑप्शन बी, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ, अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 6। 1 mole of N2O4 at 300 Kelvin is kept in a closed vessel at 1 atmosphere. It is heated to 600 Kelvin when 20% by mass of N2O4 decomposes to give NO2. The resultant pressure is। तो हमारे क्वेश्चन में N2O4 का डिकम्पोजिशन हो रहा है। ये डाइमर जो है ये मोनोमर में ब्रेक हो जाता है और आप इसको हीट कर रहे हो। 300 की जगह 600 आपने टेम्परेचर कर दिया। तो मोल्स लेट्स से कि पहले 1 थे, उसके बाद ये 1 माइनस अल्फा और ये 2 अल्फा बनेगा। दिस इज एट इक्विलिब्रियम। जब ये डिकम्पोज हो गया तो 1 माइनस अल्फा और 2 अल्फा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम अगर हम कैलकुलेट कर दें तो इट विल बी 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो 20% बाय मास डिकम्पोज हो रहा है, कहने का मतलब इट इज अल्फा 0.2, क्योंकि 20% दिया है। 0.2 आ गया 20/100। अब अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई तो टोटल मोल्स आ जाएंगे। टोटल मोल्स इज इक्वल टू 1 प्लस 0.2 मतलब 1.2। अब हमें कैलकुलेट अल्टीमेटली क्या करने को बोला गया है? यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट प्रेशर। तो हम क्या करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की हेल्प लेंगे। इनिशियली ये सिचुएशन था, प्रेशर पहले P1 था और फिर रेशो ले लो फाइनल प्रेशर का इनिशियल प्रेशर के साथ। नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, डिकम्पोज होने के बाद 1 नहीं रहता है, हमने देख लिया 1.2 मोल्स बन रहे हैं। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। पहले प्रेशर है, पहला प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, फाइनल प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज 1/P2 इज इक्वल टू 1 मोल 1.2, दिस इज 300, दिस इज 600। इनिशियली टेम्परेचर 300 केल्विन था, बाद में हीट करके 600 बना दिया, उससे डिकम्पोजिशन हुआ तो हमने सबसे पहले हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए, राइट। तो अब आप चेक करिए क्या हमारा आंसर आता है। 2.4 एटमॉस्फेयर, दिस विल बी कैंसल्ड, ये कट करके 2 आएगा। 2.4 एटमॉस्फेयर मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। In this way we have to use the laws and we have to calculate pressure, sometimes volume, sometimes number of moles. Be careful. Question number 7 now. Consider the following reaction. Cobalt chloride and HF, they are made to react and cobalt fluoride बनता है इसमें। How many liters of HF measured at 0.831 atmosphere and minus 18 degree Celsius are required to produce 454 gram of cobalt chloride? तो हम यहाँ पे भी कैलकुलेशन में वॉल्यूम निकालेंगे। हमें जो प्रेशर दिया है 0.831 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर दिया है -18, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करो, 273 ऐड करके 255 केल्विन, राइट। आगे देखते हैं, वॉल्यूम निकालना है HF का एंड हमें अमाउंट दिया है 454 ग्राम और वो HF का नहीं दिया, कोबाल्ट क्लोराइड का दिया है। तो इसका मोलर मास चाहिए ताकि हम इसके मोल्स बना सकें। 454/97, कोबाल्ट होता है 59 एंड फ्लोरीन इज 19, टोटल मास 97 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 4.683। नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं तो हम कर देंगे PV इज इक्वल टू NRT। वॉल्यूम कैलकुलेट हो सकता है, NRT और प्रेशर सब आपके पास है। नंबर ऑफ मोल्स अभी अभी निकाला हमने 4.683, R का वैल्यू 0.0821, R का ठीक से वैल्यू लेना है क्योंकि हमें प्रेशर दिया है एटमॉस्फेयर में। कितना है एटमॉस्फेयर में प्रेशर, ये देखो 0.831 इज द प्रेशर, 0.831, टेम्परेचर है 255। ये वॉल्यूम कैलकुलेशन के बाद आएगा 118 लीटर, राइट। ये वॉल्यूम कोबाल्ट फ्लोराइड का है, आपको मोल्स जिसके दिए थे उसी का वॉल्यूम आएगा, कोबाल्ट फ्लोराइड का है। तो HF के तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखो, HF के मोल्स डबल हैं,
कोबाल्ट फ्लोराइड अगर 1 मोल बनता है तो HF के 2 मोल कंज्यूम हो जाते हैं. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ HF विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ HF रिक्वायर्ड विल बी डबल. आप 118 का डबल कीजिए, ये आ जाएगा 236 लीटर्स. 236 लीटर्स मीन्स आपका आंसर है ऑप्शन सी. राइट. नेक्स्ट आते हैं, अभी हम सारे क्वेश्चन गैस लॉस के ऊपर ही कर रहे हैं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर एट 14 डिग्री सेल्सियस. एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज ऑल्सो गिवन. जितना टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट का था वो था 14 डिग्री. 14 डिग्री के ऊपर ही वेपर प्रेशर चाहिए, क्योंकि वाटर का वेपर प्रेशर तो हर टेम्परेचर पे अलग अलग होगा. आपको यहां पे वाटर का वेपर प्रेशर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां ऑक्सीजन गैस का प्रेशर दे रखा है 790. 790 में 14 माइनस करिए, ये बन जाएगा 778. राइट. एज अ रिजल्ट नहीं 12 टॉर है, 14 डिग्री है, प्रेशर है 12 नॉट 14. तो ये 12 माइनस करते हैं, 778 टॉर में प्रेशर है. और आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर में. बी केयरफुल फॉर द यूनिट. 1 एटमॉस्फेयर होता है 760 टॉर. ठीक है, तो प्रेशर आ गया 778 अपॉन 760. ये प्रेशर का वैल्यू हम डाल देंगे. वॉल्यूम हमें गिवन है, सिंपल PV इज इक्वल टू nRT, नथिंग एल्स. क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यह थी कि डाल्टन्स लॉ लगा के आपने इक्वस टेंशन वाटर की माइनस करनी है, और यूनिट्स के लिए केयरफुल रहना है. मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी PV अपॉन RT. राइट. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज नाउ. प्रेशर के लिए 778 अपॉन 760, वॉल्यूम दे रखा है 5 लीटर. R का वैल्यू एटमॉस्फेयर में प्रेशर आ गया तो 0.0821. एंड लेट्स सी द टेम्परेचर इन द क्वेश्चन. 14 डिग्री दिया है, 14 में 273 ऐड करो, 287 इज द टेम्परेचर. एंड आफ्टर कैलकुलेशन 0.2172 मोल्स विल बी ऑब्टेन्ड. आंसर बनेगा ऑप्शन सी. इन दिस मैनर कैलकुलेशन पार्ट इज टू बी टेकन केयर. कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, बट आपको वो करना है. नेक्स्ट इज vapor density of a mixture containing NO2 and N2O4 is given. दोनों प्रेजेंट है, मोनोमर भी डाइमर भी, 27 डिग्री पे दोनों का मिक्सचर है हमारे पास. व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इन 100 ग्राम ऑफ द मिक्सचर? तो देखते हैं. 2 इंटू वेपर डेंसिटी करने से मॉलिकुलर मास मिल जाएगा. मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. तो मिक्सचर का हम मोलर मास पता कर लेते हैं. आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 2 ये आ जाएगा 76.6. लेट 100 ग्राम में से लेट द अमाउंट ऑफ NO2 इज A ग्राम और X ग्राम. अमाउंट ऑफ NO2 A ग्राम ले लिया मैंने. अब दूसरे का जो N2O4 है वो हो गया 100 माइनस A. तो आप चेक करिए, 1 ग्राम है NO2 का, उसको मैंने अगर मोलर मास से डिवाइड किया तो NO2 के मोल्स बन गए. दूसरा है 100 माइनस A, उसका मोलर मास है 92, ये N2O4 का है. और मिक्सचर का अमाउंट है 100 ग्राम. मिक्सचर के भी मोल्स बना दिए. ये मिक्सचर का मोलर मास था. वेपर डेंसिटी दिया था हमने, मोलर मास अपने आप से पता कर लिया. तो ये इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, after that you will get A is equal to 20.10 grams. Question is asking you about the moles of NO2. 100 ग्राम के मिक्सचर में ऑलमोस्ट 20 ग्राम NO2 है. अब हमें आंसर पर मोल्स में देना है. Therefore moles of NO2 will be equal to 20.10 upon 46. इसका मोलर मास है 46. This is the monomer. नाइट्रोजन आपने लेना है 28, नहीं NO2 में नाइट्रोजन 1 है तो 14. ठीक है, और ऑक्सीजन का 32. दिस विल बी 46. ये मोलर मास से हमने डिवाइड किया 0.437 मोल्स. एंड कमिंग टू द ऑप्शंस, यू हैव
A option as your answer. 0.437. Right? Moving to the next now. A compressed air tank carried by scuba divers has a volume of 8 liters and pressure of 140 atmosphere at 20 degrees Celsius. What is the volume of air in the tank at STP? तो देखिए हमारे पास ये सिचुएशन है कि पहले वॉल्यूम 8 लीटर दिया है, प्रेशर है 140 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर को भी हम करेंगे केल्विन में कन्वर्ट 293 केल्विन। ठीक है, अब इसको ये वाला जो वॉल्यूम है अगर ये एसटीपी कंडीशंस में होता है तो बहुत हाई प्रेशर है 140, बट अगर एसटीपी प्रेशर होता तो ये वॉल्यूम कितना बनता? सो एसटीपी प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, इसको हम P2 ले लेंगे। टेम्परेचर आप ले लोगे 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन। जस्ट अप्लाई P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. Substitute the values and get your answer. You will have the volume as 1000 liters. ये है हमारी STP conditions and one symbol हमने रखा है experimental conditions का। You will get final volume as 1000 liters, मतलब जो 8 लीटर की कंप्रेस्ड गैस है इतने हाई प्रेशर पे, अगर उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले आए 1 एटमॉस्फेयर पे ले आए तो 8 लीटर की जगह 1000 लीटर उसका वॉल्यूम बन जाएगा। 1000 लीटर मींस ए ऑप्शन आंसर। सो सिंपल हम आइडियल गैस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे आपको वॉल्यूम पता है तो अनदर सेट ऑफ कंडीशंस पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। Another one on N2O4 again. 1 mole of N2O4 is heated in a sealed tube up to a certain temperature. When N2O4 is half dissociated into NO2, what is the ratio of partial pressures? N2O4 से आपने स्टार्ट किया हीट करना और ये बन गई NO2। ये है 1 मोल इन द बिगनिंग, बाद में ये 0.5 ब्रेक हो गई तो ये तो उसका डबल बनेगी। N2O4 का 1 मोल ब्रेक होता है तो NO2 के 2 मोल बनते हैं। सो ये बन गया 0.5 और ये बन गया 1। इज इट क्लियर? टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम के मोल्स हैं, ये इनिशियल मोल्स हैं, इनिशियली तो प्रोडक्ट था ही नहीं। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1.5, दोनों चीजें प्रेजेंट हैं इक्विलिब्रियम पे। अब हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स। तो मोल फ्रैक्शन की रेशो ले लेते हैं। ये देखो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये हमें डाल्टन्स लॉ से पता है। क्या हम बी कंपोनेंट के लिए भी सेम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? सो जो भी पार्शियल प्रेशर्स का रेशो है वो मोल फ्रैक्शंस का रेशो है। तो XA अपॉन XB कैलकुलेट कर देते हैं। XA के मोल्स हैं 0.5, टोटल मोल्स हैं 1.5, दूसरे के 1 एंड दिस इज 1.5। कहने का मतलब 1:2 आ गया। XA XB को ऐसे लिखो, दिस इज बेटर वे टू राइट XA is to XB इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 1.5, दूसरा है 1 अपॉन 1.5, मतलब जो XB है वो डबल है। कौन डबल है? मोनोमर इज डबल। NO2 डबल हो रहा है, डीकंपोज होने के बाद उसका 1 मोल बनता है जबकि रिएक्टेंट का 0.5 रह जाता है। योर आंसर इज ऑप्शन डी। 1:2 जो मोल फ्रैक्शन का रेशो है वही रेशो पार्शियल प्रेशर का होता है। ये हमने शो किया। पार्शियल प्रेशर का रेशो इज नथिंग बट द रेशो ऑफ देयर मोल फ्रैक्शंस। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, a vessel has nitrogen gas and water vapors at a total pressure of 1 atmosphere. दो चीजें प्रेजेंट हैं and the partial pressure of water vapor is given when the contents of this vessel are transferred to another vessel having 1/3 the capacity of original vessel completely at same temperature. Temperature change नहीं हो रहा है। The total pressure of the system in the new vessel will be. तो नाइट्रोजन है और वेपर्स हैं, वेपर्स का प्रेशर हटाना पड़ेगा। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विल बी 1 - 0.3, मतलब नाइट्रोजन गैस सिर्फ 0.7 है क्योंकि पहले तो मिक्सचर था दोनों चीजों का, वाटर वेपर और नाइट्रोजन का। अब ये प्रेशर हमारे पास N2 का आ गया। When the contents are transferred to another vessel, तो
आप लगाइए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इनिशियली प्रेशर जो था 0.7 था, तब 1 लीटर कैपेसिटी थी। उसके बाद 1/3 कैपेसिटी कर दी, 1 लीटर की जगह मैंने 1/3 लीटर कर दिया है। नया प्रेशर हमें पता करना है। विल यू बी एबल टू गेट 0.7 इंटू 3, मतलब ये आ गया 2.1 प्रेशर। बट ये 2.1 सिर्फ N2 का है, अभी वाटर वेपर्स तो बीच में रहेंगे ना। टोटल प्रेशर विल बी प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स। जो भी एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर है उस पे वाटर के वेपर्स का प्रेशर है 0.3, आपको 0.3 ऐड करना है। बस क्वेश्चन में लास्ट में जो ऐड करना है ये इंपॉर्टेंट बात है, 2.4 एटमॉस्फेयर, दिस थिंग वाज इंपॉर्टेंट। प्रेशर ड्यू टू वाटर, जिसको कि आप एक्वस टेंशन कहते हैं, वो आपको याद रखना है कि अल्टीमेटली इट हैज टू बी एडेड, क्योंकि आपका क्वेश्चन नाइट्रोजन पे नहीं है, क्वेश्चन एक मिक्सचर पे है जिसमें नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स दोनों प्रेजेंट हैं। आंसर बन रहा है ऑप्शन ए 2.4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 13। द एवरेज ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड is 0.25 ग्राम पर लीटर O2। ब्लड में 0.25 ग्राम ऑक्सीजन 1 लीटर के पीछे है। Assuming a body temperature to be 37 डिग्री सेल्सियस, how many moles of oxygen are transported by each liter of blood and how many milliliter? कितने मोल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है और साथ में उसका वॉल्यूम भी निकालना है। पहले तो मोल्स बना देते हैं, सिंपल काम, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट है 32, गिवन वेट था 0.25 ग्राम। ऑक्सीजन का वेट दिया था हमने, ऑक्सीजन के मोलर मास से डिवाइड कर दिया। ये आता है 7.8 इंटू 10⁻³ मोल्स। अब साथ में हमें वॉल्यूम भी निकालना है, दो चीजों का आंसर चाहिए। PV इज इक्वल टू nRT से आप वॉल्यूम निकाल दीजिए, nRT अपॉन P। लेट्स राइट दी वैल्यूज। वैल्यूज हैं 7.8 इंटू 10⁻³ एंड 0.0821 इज दी R वैल्यू। क्वेश्चन में टेम्परेचर है 37 डिग्री, 37 डिग्री के केल्विन बनाइए, 310 बनेंगे। प्रेशर क्या गिवन था क्वेश्चन में? प्रेशर आपको दिया है, एवरेज कंटेंट इज दिस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर दिस, 1 एटमॉस्फेयर आर्टीरियल ब्लड, ठीक है। तो एयर का ही प्रेशर लेना है तो हम 1 एटमॉस्फेयर लेंगे। फाइनल वॉल्यूम आफ्टर मल्टीप्लीकेशन विल कम आउट टू बी 0.198 लीटर विच कैन बी टेकन एज 0.2। 0.2 का मतलब 200 मिलीलीटर ऑक्सीजन कैरी होती है अगर ऑक्सीजन कंटेंट 0.25 ग्राम पर लीटर हो। आपका आंसर बन रहा है दिस वन, ए ऑप्शन। थिंग्स आर क्लियर। Let's move to the next now, question number 14th. Another one is, the apparatus shown consists of 3 bulbs which are connected by stopcocks. What is the pressure inside the system when the stopcocks are opened? ये stopcock को अगर खोल दिया जाए तो क्या आपके पास प्रेशर रहेगा? क्वेश्चन ने दिया है, assume that the lines connecting the bulbs have 0 volume and temperature also remains constant. तो इनिशियल वॉल्यूम तो हर बल्ब का अपना अपना है। कार्बन डाइऑक्साइड का इनिशियल वॉल्यूम 1.5 है, H2 का अलग वॉल्यूम है, 1 लीटर के बल्ब में है, आर्गन है 2 लीटर के बल्ब में। पर जब ये वॉल्व्स खोल देंगे फिर तो टोटल वॉल्यूम ऐड करके आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम 1.5 + 1 + 2 मतलब 4.5 लीटर का वॉल्यूम बन जाएगा फिर जब आप इनको कंबाइन कर दोगे आफ्टर ओपनिंग दी वेल्व्स। अभी प्रेशर सबके अलग अलग हैं, बट आपको तो क्या कैलकुलेट करना है? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमें निकालना है। फर्स्ट वी विल बी राइटिंग P, पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। P इनिशियल, V इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो पहला डेटा है आपके पास 2.13 और वॉल्यूम 1.5, फाइनल तो 4.5 लीटर वॉल्यूम हो रहा है, उसका प्रेशर हम निकालेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर आएगा। उसके बाद आप सेम एक्सप्रेशन लगाओ, दूसरी गैस है H2। फॉर H2 ये सेम इक्वेशन PiVi इज इक्वल टू PfVF।
इनिशियली डेटा था 0.861 एंड 1, ये आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हो, 0.861 एटमॉस्फेयर एंड 1 लीटर, और फाइनल तो वॉल्यूम आपको 4.5 बना दिया है, तो फाइनल प्रेशर यहां से निकलेगा। तीसरा कंपोनेंट है आर्गन, उस पे हम सेम एक्सप्रेशन पुट करेंगे। उसका इनिशियल प्रेशर था 1.15, वो 2 लीटर के वेसल में थी। फाइनल प्रेशर हम पता कर रहे हैं 4.5 लीटर। 3 आंसर आएंगे आपके पास, एक आएगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्रेशर, फिर आएगा H2 का, और फिर आएगा आर्गन का। तीनों को ऐड करिए। सो टोटल प्रेशर विल बी प्रेशर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेशर ड्यू टू कौन सी गैस है, सेकंड H2, तीसरी गैस है आर्गन। तीनों के प्रेशर्स हम यहां से 3 आंसर निकालेंगे। ये है फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड का, सेकंड इज फॉर H2, थर्ड इज फॉर आर्गन। इनको ऐड करेंगे, अल्टीमेटली 1.412 एटमॉस्फेयर आपका फाइनल आंसर। 1.412 का मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15th। नाउ द क्वेश्चन इज कंसिडर द कंपोजिट सिस्टम which is held at 300 Kelvin as shown in the following figure. Assuming ideal gas behavior, calculate the total pressure if barriers separating the compartments are removed. Assume that the volume of the barriers is negligible. तो देखिए, ये बैरियर्स को हटा दिया जाए तो आपको टोटल प्रेशर कितना मिलेगा। टोटल वॉल्यूम देखते हैं पहले। जब सबको बैरियर्स को हटा देंगे तो हीलियम का पहले 2 लीटर था वॉल्यूम, नियॉन का 4 लीटर और उसका 1 लीटर, ये 7 लीटर टोटल वॉल्यूम बनेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स के बाद आप कर सकते हो PV इज इक्वल टू nRT। टोटल प्रेशर के लिए nRT अपॉन V, सबके मोल्स चाहिए। पहला हम हीलियम का कैलकुलेशन करते हैं, ये है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू PV अपॉन RT। प्रेशर की वैल्यू है 1.5 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर फर्स्ट चैम्बर में देखिए, और क्वेश्चन में टेम्परेचर T रखते हैं क्योंकि हर कंपार्टमेंट का टेम्परेचर वही है 300। उसके बाद आता है सेकंड चैम्बर जिसमें नियॉन है, अगेन PV अपॉन RT। PV अपॉन RT करके इसकी वैल्यू आ रही है 2.5, इसका ये वॉल्यूम। तीसरा जीनॉन, जीनॉन के मोल्स PV अपॉन RT, वो तो 1 ही दिया है, 1 एटमॉस्फेयर 1 लीटर। तो सबकी वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, सबके मोल्स आपने बना लिए हैं। अब हम ऐड कर देंगे। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फर्स्ट गैस कौन सी थी, हीलियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम प्लस नियॉन प्लस जीनॉन इनटू RT अपॉन V। ठीक है, तो ये आपके पास बनता है 3 और ये 10 और ये 1 अपॉन RT, और वॉल्यूम हो रहा है टोटल 7 लीटर। 6 आया था, 7 आया था, 7 आया था, 7 लीटर वॉल्यूम है। ये देख लो, ये आपके पास है 3 अपॉन RT, दिस इज 2.5 इंटू 4 मतलब 10 है ये, और ये है 1। 10 अपॉन RT, 1 अपॉन RT, RT अल्टीमेटली हम कैंसिल करेंगे। आपका आंसर बनता है इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर, क्योंकि न्यूमरेटर में 14 आ रहा है, 10 प्लस 3 प्लस 1, 2 एटमॉस्फेयर फाइनल प्रेशर मींस हम आ जाते हैं ऑप्शन बी के ऊपर, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ, 2 inflated balloons 1 and 2 having thin skin, they have volume 600 ml and 1500 ml at this temperature. 2 बैलून्स आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। If the maximum volume of the inner and outer balloon are, inner balloon maximum 800 ml का वॉल्यूम अचीव कर सकता है, outer का 1800 ml respectively. Then find the balloon which will burst first on gradual heating. हीट करेंगे तो कौन सा बैलून पहले बर्स्ट करेगा, इनर बैलून और आउटर बैलून, और बोथ विल बी बर्स्टिंग साइमल्टेनियसली। आप हीट करके टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और आप यहां कितने टेम्परेचर पे पहुंचते हो वो देखना है, ठीक है। 300
केल्विन पहले बिगनिंग में था। लेट्स से इनर बैलून की बात करें, इनर बैलून का वॉल्यूम था 600 और मैक्सिमम ये 800 तक जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ये टेम्परेचर है 300। क्या हम T2 कैलकुलेट कर सकते हैं? इट विल बी V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1, या बेटर है ऐसे लिखो V1 अपॉन T1, दैट इज अ easier way to write. V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 600, ये है 300, ये है 800 और ये है T2। तो ये 400 केल्विन आ जाएगा। अब बात करते हैं आउटर बैलून की। फॉर आउटर बैलून अगेन वी हैव V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। आउटर बैलून का वॉल्यूम दिया था 1500 और वो मैक्सिमम 1800 तक जा सकता है। तो दिस इज 1500 एंड दिस इज 300 एंड 1800 तक आपको लेके जाना है। फाइनल टेम्परेचर हम पता करते हैं T2। तो T2 विल बी इक्वल टू, आफ्टर कैलकुलेशन 360 आ जाएगा। अब एक बैलून मैक्सिमम 400 तक और दूसरा 360 तक जा रहा है, कहने का मतलब 360 केल्विन ऑब्वियसली विल बी अचीव्ड फर्स्ट। तो पहले जो आउटर बैलून है वो बर्स्ट होगा। आउटर बैलून के पास टेम्परेचर 360 है, इनर बैलून 400 पे बर्स्ट होगा। योर आंसर बिकम्स आउटर बैलून। आउटर बैलून मीन्स बी ऑप्शन इज द आंसर। इज इट ओके? अनदर वन, two vessels connected by a valve having negligible volume. One container has 2.8 gram N2 at temperature T1 and outer container is completely evacuated. The container 1 is heated to T2 while container 2 is maintained at temperature T1 upon 3. Volume of first is half of the volume of 2 and valve is opened. What is the weight ratio of nitrogen in both the vessels? तो देखिए ये सिचुएशन हमारे क्वेश्चन में क्रिएट करी गई है कि एक तरफ है नाइट्रोजन और दूसरी तरफ कंप्लीट वैक्यूम है। वी हैव N2 एंड अदर साइड इज वैक्यूम एंड दे आर कनेक्टेड। सो वी हैव 2.8 ग्राम N2। 2.8 का मतलब है 0.1 मोल N2 है, 0.1 मोल। अब कुछ N2 ट्रांसफर होती है, दूसरे कंटेनर में जाती है। द अदर कंटेनर 2 इज इवैक्यूएटेड एंड कंटेनर 1 इज हीटेड टू T2। इसको आपने हीट कर दिया है T2 पे, बट द सेकेंड कंटेनर इज मेंटेन्ड एट T2/3। दिस इज गिवन, T2/3 पे है सेकेंड कंटेनर। एंड वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट इज हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेकेंड, मतलब पहले का वॉल्यूम अगर V ले लेंगे तो दूसरे का वॉल्यूम 2V, फर्स्ट का वॉल्यूम हाफ है। इफ द वेल्व इज ओपन व्हाट इज द वेट रेशो? तो पहले आप ये एज्यूम करो, लेट x मोल्स ऑफ N2 आर इन कंटेनर 2। सेकेंड कंटेनर में x मोल्स हैं, तो फर्स्ट वाले में 0.1 माइनस एक्स, तो पहले में 0.1 माइनस एक्स और दूसरे में x। ये सिचुएशन है, ये टेम्परेचर्स हैं, ये वॉल्यूम्स हैं, प्रेशर कांस्टेंट है। तो आप लिख दो इक्वेशन P इंटू 2V इज इक्वल टू x इंटू, यहां x मोल्स है ना, दिख रहा है सब, यहां x मोल्स हैं। PV इज इक्वल टू nRT हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये मैंने सेकेंड कंटेनर के ऊपर लगा दिया जिसका टेम्परेचर था T2/3। सेकेंड कंटेनर और यू कैन से सेकेंड चैम्बर। फर्स्ट का प्रेशर P है बट ये है 0.1 माइनस एक्स और वॉल्यूम तो V ही रहेगा। PV इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ मोल्स को राइट पे लिखेंगे, वॉल्यूम इसका V है, इसका वॉल्यूम हाफ है, 0.1 माइनस एक्स इंटू R इंटू T2। जस्ट डिवाइड द टू एंड गेट द वेट रेशो। यहाँ पे हमारे पास जो x आएगा अभी मोल्स में आएगा क्योंकि आपने मोल्स को एज्यूम किया है, अल्टीमेटली वेट रेशो निकालनी है। डिवाइड कर देते हैं, सो दिस इज 1, दिस इज 2। अगर हम 1/2 कर दें तो आपके पास ये बन जाता है 2, क्योंकि ये कैंसिल होने हैं ना कुछ पैरामीटर्स, प्रेशर कैंसिल होगा, वॉल्यूम कैंसिल होगा। 2 इज इक्वल टू x अपॉन 0.1 माइनस x अपॉन 3। एक T2 था, एक T2/3 था,
तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये 2 को 6 बना देते हैं, दिस विल बी इक्वल टू x, तो x का वैल्यू आ जाएगा 0.6 अपॉन 7 विच इज इन मोल्स। अल्टीमेटली आंसर तो ग्राम्स में देना है, नाइट्रोजन का मोलर मास है 28, तो ये बन गया 7 4 28, मतलब 2.4 ग्राम N2 इज द वैल्यू ऑफ x। तो x कहाँ था? सेकंड चैम्बर में। फर्स्ट में तो था 0.1 माइनस एक्स, सेकेंड में x, तो मतलब 2.4 इन सेकेंड चैम्बर N2 एंड फर्स्ट के अंदर 0.4 ग्राम हो गई। ये था सेकेंड, ये है फर्स्ट। तो रेशो क्या बन रहा है इन द सेकेंड कंटेनर? फर्स्ट कंटेनर 1:6 आ गया ना, 0.4:2.4 इज 1:6। 1:6 मीन्स आपका आंसर है ऑप्शन सी। सो दिस वॉज ए क्वेश्चन विच वॉज गिविंग इंफॉर्मेशन इन ग्राम्स, आस्किंग इन ग्राम्स, बट आपको PV इज इक्वल टू NRT में केयरफुल रहना है। n नंबर ऑफ मोल्स है, आपने जैसे ही हीट किया तो गैस ट्रांसफर होती है दूसरे कंटेनर में, इस तरीके से हमने कैलकुलेट करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ, डेंसिटी ऑफ अ वेपर ऑफ अ सब्सटेंस एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 500 केल्विन इज गिवन। डेंसिटी लिख लेते हैं 0.35 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। The vapor effuses through a small hole at a rate of 1.33 times faster than oxygen under the similar condition. What is the molar volume? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दिस वेपर को कंपेयर करेंगे विद ऑक्सीजन, तो ये आ जाएगा मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेपर, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हम अप्लाई करते हैं। दिस इज 1.33, दिस इज 32। कैन आई कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ वेपर? तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 18 यूनिट्स, मतलब 18 AMU। क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट दी वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है, आपको डेंसिटी दी है और मास हमने निकाल दिया है। डेंसिटी को लगाइए, मास अपॉन वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। दिस इज 18 गिवन, वॉल्यूम यू हैव टू कैलकुलेट एंड डेंसिटी का वैल्यू है 0.35, 0.35। You will get your answer as 50 आ रहा है। This will come out to be 50 liters, right? क्योंकि किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स, दैट थिंक, एंड 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये ग्राम पर लीटर के लिए भी चलेगा। किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो दिया है वो फैक्टर सेम है। योर आंसर इज कमिंग आउट टू बी 50 means B option, right? 1 kg is 10 raised to power 3 grams and 1 meter cube is 10 raised to power 3 liters. This thing we should be careful. Let's move to the next question now. The density of a gas A is twice that of density of gas B at same temperature. Let's write density of A is 2 times of density of B. Molecular weight of B is 2 times of molecular weight A. What is the ratio of pressure of A to B? ये आपको कैलकुलेट करना है। Keep in mind डेंसिटी होता है PM अपॉन RT, टेम्परेचर कांस्टेंट है क्वेश्चन के अंदर, तो दोनों का रेशो ले लो। डेंसिटी ऑफ A अपॉन डेंसिटी ऑफ B इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ A अपॉन प्रेशर ऑफ B। लाइकवाइज मॉलिकुलर मास ऑफ A इन द न्यूमरेटर, मॉलिकुलर मास ऑफ B इन द डिनोमिनेटर। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। यहाँ पे ये आपके पास PA अपॉन PB आ जाएगा 4। प्रेशर ऑफ गैस A 4 टाइम्स है एज कंपेयर टू प्रेशर ऑफ गैस B। ये एक्सप्रेशन की हेल्प से आपने किया है, तो हमारा आंसर बन रहा है प्रेशर ऑफ A एंड B इज 1:4, नहीं A का 4 गुना ज्यादा है, तो 4:1। 4:1 मीन्स C is the answer, right? Simple expression on density. Now the last one, at STP a container has 1 mole helium, 2 mole neon, 3 mole oxygen, 4 mole nitrogen. तो एक कंटेनर में ये 4 गैसेस हैं STP पे। Without changing total pressure, if 2 mole of oxygen is removed, 2 मोल ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विल डिक्रीज बाय। तो हम क्या करेंगे, पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालते हैं।
बिगनिंग में ऑक्सीजन के 3 मोल थे, टोटल मोल हैं 1 + 2 + 3 + 4, टोटल 10 मोल हैं, तो ऑक्सीजन का प्रेशर है 3/10 ऑफ द टोटल प्रेशर, राइट। पी टोटल को पीटी लिख देते हैं। अब हमने 2 मोल ऑक्सीजन हटा दिया, 2 मोल ऑक्सीजन हटा दिया तो 3 में से 2 निकल गए, 1 ही मोल रह गया, 1/8 हो गया ना, क्योंकि टोटल मोल पहले 10 थे, अब तो 8 मोल ही गैसेस बची हैं। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर रिडक्शन, कितना पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हुआ है। सो डिक्रीज निकालते हैं, परसेंटेज में आंसर देना है। डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, पहले था 3/10, फिर रह गया 1/8, टोटल प्रेशर है पीटी एंड 100 से हम कंपेयर करेंगे ताकि हमारा आंसर परसेंटेज में आ जाए सीधा। ये बनता है पीटी पीटी इज कैंसल्ड, यू आर गेटिंग डायरेक्टली 58.3%। सिंपल कैलकुलेशन, 58.3% परसेंटेज डिक्रीज आंसर देना था। योर आंसर इज ऑप्शन सी। So in this collection of 20 questions we have discussed about all the laws, किस तरह के लॉज में से क्वेश्चन आते हैं। और पार्शियल प्रेशर बहुत यूजफुल टर्म है, डाल्टन्स लॉ की हेल्प से आप किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट। किसी कंपोनेंट ऑफ गैस को इंक्रीज कर दिया, किसी को डिक्रीज कर लिया, पार्शियल प्रेशर चेंज होता है, किस तरीके से कैलकुलेट होता है। पार्शियल प्रेशर इज डिपेंडेंट अपॉन द मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन पता होने से आप पार्शियल प्रेशर्स का रेशो ले सकते हो। सिमिलरली कौन सी गैस फास्ट रेट पे मूव करेगी, कौन सी स्लो रेट पे मूव करेगी, वो ग्राम्स लॉ की हेल्प से। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी, और वी कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बात इंपॉर्टेंट है किस लॉ के अंदर कौन सा पैरामीटर फिक्स है। जैसे कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर फिक्स है, तो जब क्वेश्चन में दिखे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो समझना है कि हमें बॉयल्स लॉ लगाना है। बट अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट आ रहा है तो फिर चार्ल्स लॉ है। अगर आपके पास कांस्टेंट पैरामीटर आता है वॉल्यूम तो ये है अमेंटन्स लॉ। सो अलग अलग सिचुएशन में आपको अलग अलग इक्वेशन चूज करना है। बी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स ऑफ आर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर गलत होने से हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूरा गलत हो जाता है। जेईई मेंस में यूनिट के बेसिस पे क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करी जाती हैं। बी केयरफुल फॉर दैट। इन दिस चैप्टर यूनिट्स ऑफ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ particular question, right? So in the next video we will be taking up now the kinetic molecular theory. kinetic molecular theory में आपको कुछ postulates और फिर different types of velocities पढ़ना है। That is all about the lecture. So keep practicing till we meet in the next video, and make sure you subscribe to the channel for more videos that will help you to have a better revision. Thank you and bye bye.